Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. My name is Arun Vashisht, and in this video I am going to talk about part 3 questions related to cue card. Describe a polluted place. And this topic is in the list of June to August 2020, and if you're going to take exam in the month of August, so then you could have these questions on your test day. So let's see question number 1. What kinds of pollution do cities have? Sadly, big cities have factories or industrial areas nearby, so smoke drift into residential areas. I strongly believe that it should be controlled. There are also some other kinds of pollution, namely noise, water, light pollution and such like. Sadly, जब भी आप किसी भी सेंटेंस को सैडली से शुरू करते हैं, इसका मतलब है सैडली मीन्स आप थोड़ा उदास होकर बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो सैडली, जैसे आप कहते हैं कि मैंने बहुत तैयारी करके अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया था, सैडली आई गॉट 6.5. अगर आपको 7 स्कोर चाहिए था, सो देन यू यूज सैडली. जैसे अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से अगर आप भी परेशान हो रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान हो रही है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत परेशान हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मेरे शहर में आइल्स का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है. Sadly, exams are not happening in my city, so this is something right which is really I didn't expect to happen. So sadly, big cities में factories और industrial areas जो हैं, so smoke जो है वो residential areas में, उसकी वजह से जो है जो residential area में जो smoke से जो नुकसान होता है, so it's happening. I strongly believe that. When you say strongly believe, this means that this is your stronger way to present your opinion. I strongly believe that it should be controlled. Passive, it should be controlled means ये control होना चाहिए. There are also some other kinds of pollution, namely जब भी आपको एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ को mention करना हो, सो आप namely use ज़रूर करें. namely एक discourse marker है, namely ज़रूर use करें, और adverb है. बहुत अच्छा तरीका है higher bands को लेने का. If you are aiming to score 7, 8 or 9, so then try to use these type of words. Okay? Namely, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मुझे बोलना हो कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, namely A, B, C, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, namely, okay? So, namely, noise, water, light pollution and such like. जब आपको लास्ट में बोलना हो and so on से भी ज़्यादा complex है and such like. Why don't some people care about the environment? I wish I would be in authority and I could punish these spoiled brats. Some people think that there is no point taking action because the little they do will not make a difference. I wish. When you say I wish, this means कि काश ऐसा होता, I would be in authority. Authority means power. कि आपके पास power होती, आप कोई minister होते, या आपके पास authority होती कि आप उनको punish कर सकते. Spoiled brats का मतलब है जो बिगड़े हुए होते हैं, बिगड़े हुए spoiled brats, जिनको मतलब कुछ भी नहीं पता है कि कहीं भी कुछ भी नुकसान करने का. और spoiled brats को आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ख़ास तौर पे ये 18 से लेके 30 के बीच में हो सकते हैं spoiled brats. Okay? Some people think that there is no point. कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग करेंगे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है. सो अगर हम लोग थोड़ा सा करेंगे इससे क्या हो जाएगा. सो सम पीपल थिंक दैट देयर इज़ नो पॉइंट टेकिंग एक्शन बिकॉज द लिटिल दे डू विल नॉट मेक अ डिफरेंस. Do you think there is more or less pollution than in the past? How about the future? Our forefathers would never have imagined about the pollution we have in our cities. I assume there is much more pollution nowadays because there are several cars on the roads. There are also loads of factories, like I said before. Future is unpredictable. Mind you, I guess people will be more into electric vehicles in a distant future.
आवर फोर फादर्स मीन्स जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जो हैं, उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से करप्शन होगा, पोल्यूशन होगा, या इस तरीके से मतलब बुरा हाल हो जाएगा आने वाले टाइम में. सो फोर फादर्स पूर्वज को बोलते हैं, राइट. या अगर मैं बात करूं जैसे कोरोना की जो बीमारी चल रही है या लॉकडाउन चल रहा है, सो हमारे पूर्वजों ने तो ये कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इस तरीके से लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे. I assume, I think की जगह पर आप I assume यूज कर सकते हैं. Please stop saying I think. So start using I assume. You say that I assume इस बार मेरा बैंड स्कोर आ जाएगा. I assume इस बार मैं 7+ स्कोर करूंगा. I assume this time I'm going to score 7+. I assume there's much more pollution nowadays because there are several means बहुत सारे. Many use ना करें, many की जगह पर use करें several. आप numerous भी use कर सकते हैं. Several cars on the roads. There are also loads of मतलब बहुत सारे loads of factories like I said before. जैसे ही आप ये यूज़ करते हैं like I said before, इसका मतलब है कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया, so this shows to the examiner that you know your position, you know that what you've said, आपको पता है आपने इससे पहले क्या बोला है. दिस मीन्स कोहेरेंस में आपका अच्छा स्कोर आएगा. फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल. फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, मीन्स अनप्रेडिक्टेबल मीन्स जो प्रेडिक्ट ना किया जा सके, जिसके बारे में अंदाजा ना लगाया जा सके. माइंड यू एक डिस्कोर्स मार्कर है. बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं. अक्सर मैं अपनी वीडियोस में यूज करता हूं. बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं माइंड यू. आई गेस. Don't say I think again. So you can use, instead of this, you could say I guess. People will be more into electric vehicles. Means लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा electric vehicles में in a distant future. When you say something will happen in a distant future means मतलब काफ़ी समय के बाद, मतलब 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल बाद. What should we do about environmental pollution? Don't get me wrong, I'm not saying that this is the whole truth, but we can't do anything because government doesn't commit to stricter laws about using green energy. Many are trying to change that, said they failed to meet their targets. Here is my personal suggestion. Government should ban things that are hazardous for our planet. डोंट गेट मी रॉन्ग. बहुत इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी लाइन है जहाँ आपको बोलना है कि सर मुझे गलत मत समझना, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि यही सच है. डोंट गेट मी रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ द होल ट्रुथ. ओके, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आईएलटीएस क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है क्या, या पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर क्यों जाते हैं, कनाडा क्यों जाते हैं ज़्यादातर. सो इफ़ यू से दैट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ द होल ट्रुथ. मीन्स ये लाइन कहने का मतलब ये है कि सर जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये भी एक मतलब फैक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है. सिंपल तरीके से बताऊँ, पंजाबी च कहां दा सीधी जी गल है, इंप्रैस करने की कोशिश है. इंप्रैस करने का बहुत वधिया तरीका है. एग्जामिनर नूं जिन्ना ज़्यादा लैंग्वेज दिखाओगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर खुश होगा और इम्प्रेस होगा और चुप करके 7+ बैंड स्कोर तुम्हें दे दूंगा. Don't get me wrong, I'm not saying that this is the whole truth, but we can't do anything. हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट डजंट कमिट टू स्ट्रिक्टर लॉज. गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट के कानून है वो इतने सख्त वो है ही नहीं. मतलब वो अगर होते हैं तो फिर उसको लोग मानते नहीं, अगर मानते नहीं हैं तो फिर गवर्नमेंट के जो लॉ बनाने वाले हैं वही उसको तोड़ने पे मजबूर कर देते हैं. अबाउट यूजिंग ग्रीन एनर्जी, राइट, मैनी आर ट्राइंग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्राई भी कर रहे हैं. मैनी आर ट्राइंग टू चेंज दैट सेड मीन्स बट की जगह पर आप that said भी यूज कर सकते हैं. that said, having said that, mind you, okay, that said, there, they are की contraction है, there, they are की contraction है, there, failed to meet their targets means वो फिर भी मतलब वो चीज़ नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं. Here is my personal suggestion. यहाँ पर है मेरा पर्सनल सजेशन जो मुझे लगता है, राइट. हियर इज माई पर्सनल सजेशन. गवर्नमेंट शुड बैन थिंग्स, बैन कर देना चाहिए दैट आर हजार्डस मीन्स डेंजरस, ओके, फॉर आवर प्लैनेट. So this was our today's video. At the end of the video, all I ask you to leave a like or a comment, और comment करके ज़रूर बताएं प्लीज़. अगर आप comment करते हैं तो उससे मुझे confidence मिलता है और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा. प्लीज़ comment करके बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कम से कम 1-2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.